بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنی علما۔ اور اب ہے رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر ہے 64۔ قل آپ کہہ دیں، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو اور لام، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، تعالو تم آؤ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تعالو کا عین لام اور واو، اور اس کو اسم الفعل کو کہتے ہیں جو اسم اور فعل کے مل کے بنتا ہے، ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ اسم کا مطلب ہے ناؤن اور فعل کا مطلب ہے ورب، یہ ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اس کا ماضی مضارع نہیں ہوتا، یہ ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے۔ بلند مقصد کے لیے آتا ہے، بلانا کے لیے آتا ہے، اور اوپر کی طرف آؤ، اس سے مراد آؤ، تم آؤ، اوپر کی طرف آؤ۔ الا طرف کالماتن، اس کلمے کی طرف، اور یہاں پہ کلمے سے مراد لفظ نہیں ہے، اور اس سے مراد بات ہے جس کی تفصیل مراد ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور ادھر کلمہ توحید ہے۔ سواءن برابر ہے، سین واو اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے اور اس کا کوئی جمع واحد مذکر مؤنث نہیں ہوتا۔ بیننا درمیان نہ ہمارے، و بینکم اور درمیان تمہارے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ یہ کہ نہ، نعبدو ہم عبادت کریں، عین بے با اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ مگر، اللہ اللہ تعالیٰ کی، ولا اور نہ، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، شین را اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، بھی با من ساتھ ہی، من اس کے، شیئن کسی چیز کو، جو شیئن ہے یہ اسم نکرہ ہے، اگر ال لگ جائے تو اسم معرفہ بن جاتا ہے، لیکن یہ شیئن ڈبل زبر ہے تو یہ اسم نکرہ ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لوگ بھی چیزیں بھی، یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ کسی بھی ہم چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ولا اور نہ، یتخذ نہ بنائے،
यत्ताहिदा बनाना, हमजा हा और जाल इसका रूट वर्ड है। बादुना हम में से बाज, बादन बास को, अरबाबन ये रब की जमा है अरबाबन और इसका रूट वर्ड वही है रा बाबा। मिन से दूनी सिवाय अल्लाही अल्लाह ताला के। फ़ाइन बस अगर तवल्लऊ वो मुंह मोड़ लें। तवल्लऊ का मतलब होता है मुंह मोड़ लेना या मुड़ जाना। फ़क़ूलू बस आप कह दो, इशहदू तुम गवाह हो जाओ। शीन हा और दाल इसका रूट वर्ड है। बि अन्ना बिलाशुबा हम, यकीनन हम, मुस्लिमून मुस्लिम की जमा है मुसलमान है। मीम ये सीन लाम और मीम इसका रूट वर्ड है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कह दीजिए अहले किताब आओ एक बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, और वो बात यह है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। तमाम अंबिया इंसानों के लिए दीन के नाम पर जो पैगाम लाए वो तौहीद का पैगाम था। अव्वल से लेकर आखिर तक हर नबी ने एक ही चीज़ की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की बंदगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में किसी इंसान को भी ऐसा बुला मुकाम ना दिया जाए जो मुकाम अल्लाह ताला के लिए खालिस है या ख़ास है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा और इस पैगाम के साथ भेजा। सूरत अन-नहल आयत नंबर 36 में आता है कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत की बंदगी से इज्तनाब करो। सूरत अंबिया की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपसे पहले हमने जो कोई भी रसूल भेजा मगर उसकी तरफ वही की गई कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, बस तुम मेरी ही बंदगी करो। तो हर रसूल और नबी ने आकर अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकल की तरफ जो हाथ भेजा था उसमें तहरीर थी, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से रूम के बादशाह हरकल के नाम। सलाम हो उस शख्स पर जो हदायत की पैरवी करे। हमदो सना के बाद मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, मुसलमान हो जाओ सलामत रहोगे। इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुगना अजर सवाब अता फरमाएगा, और अगर तुमने ना माना तो किसानों का गना भी तुम पर होगा। आप कह दें अहले किताब इस कलमे की तरफ आओ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और हम अल्लाह के सिवा एक दूसरे को रब भी ना बनाएं। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो आप कह दो, तुम गवाह हो जाओ, बिलाशुबा हम मुसलमान हैं। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4553 है। अब है आयत नंबर 65। या अहलल किताबी ए अहले किताब, लिमा क्यों, तुहाजूना तुम झगड़ते हो। अब इसका रूट वर्ड है हा जीम जीम, और झगड़ा ऐसा झगड़ा जिसमें दलील के साथ किसी दूसरे पर गालिब आने की कोशिश की जाए। फ़ी इब्राहीमा इब्राहीम के बारे में, यानी दीन इब्राहीम के बारे में। वमा और नहीं, हालांकि नहीं, उनजिलत नाजिल की गई, अत-तौरातु तौरात, वल इंजीलु और इंजील, इल्ला मगर, मिन बादी ही उसके बाद। अफला तो क्या नहीं, ताक़िलून तुम अकल करते या तुम समझते। आइन काफ और लाम इसका रूट वर्ड है। या अहलल किताबी ए अहले किताब तुम क्यों झगड़ते हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मामले में। इब्ने इसहाक ने अपनी सनद से इब्ने अब्बास का कौल नकल किया है कि नजरान के ईसाई और यहूदी जो उलमा थे वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जमा हुए। यानी नजरान के ईसाई तो आए थे, जब यहूद को पता चला कि नजरान का वफद आ गया है तो वो भी पहुंच गए, वहां आपकी खिदमत में जमा हुए। तो उलमा यहूद ने कहा, इब्राहीम यहूदी थे, नसारा कहने लगे वो तो ईसाई थे, आपस में झगड़ने लगे। हर एक इनको अपनी तरफ खींच रहा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम किस बात पे झगड़ रहे हो। इब्राहीम के बारे में एक कहता है वो यहूदी थे, दूसरा कहता है वो नसरानी थे। ये कैसे हो सकता है कि वो यहूदी या नसरानी हो, जबकि यहूदियत और नसरानियत तो बाद की पैदावार है। यहूदियत वजूद में आई तौरात के नज़ूल के बाद, जब लोगों में बिगाड़ आया, और नसरानियत पैदा हुई इंजील के नज़ूल के बाद। और ये फरमाया, वमा उनजिलत अत-तौरात वल इंजील, और नहीं उतारी गई थी तौरात और ना इंजील, इल्ला मिन बादिही मगर इसके बाद। किसके, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। अफला ताक़िलून तो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। अगर अकल से काम लो तो ये हुज्जतबाजी और बहस मुबाहिसा और मुनाजरा इसकी ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी सी अकल से काम लो। और इससे पहले सूरत बकरा में आयत नंबर 140 में भी आता है कि तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब
اور उनकी औलाद जो भी थे वो यहूदी या ईसाई थे। इन्हें पूछो क्या अल्लाह ज़्यादा जानता है या तुम ज़्यादा जानते हो। अल्लाह ताला को फैसला तो ये है कि वो यहूदी या नसरानी नहीं थे, वो यकसू मुसलमान थे और वो किसी के गिरोह से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अब है आयत नंबर 66, हा अंतुम, हाँ तुम तो। यहाँ पे हा जो है वे ये हरफ तंबीह है, और पहले भी हमने या अय्युहन नासु में पढ़ा है इसको। किसी को वान करना, तंबीह करना, और पुकारते वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं। और अंतुम ज़मीर है जिसको प्रोनाउन भी कहते हैं, ज़मीर मुनफसिल। हाउलाई ये अस्माए इशारा में से है एक। वो लोग हो, हाँ तुम तो वो लोग हो। हा जज तुम, झगड़ा किया तुमने। हा जीम जीम, देखें अब झगड़ने का हा जज तुम, इसका कई फॉर्म में आ रहा है। तो हा जूना, हा जज तुम, फिर आगे आएगा तो हा जूना, बार बार ये आ रहा है इसमें, इसको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। झगड़ा किया तुमने, फी माँ, फी मीन बीच, मामिन जो, इसमें जो, लकुम तुम्हारे लिए था, बिही जिसका, इल्मुन इलम, फालिमा फिर क्यों, पास क्यों, लिमा का मतलब क्यों होता है ना, फामिन पास। तो हाजूना तुम झगड़ा करते हो, फीमा इस बारे में, लईसा नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, बिही जिसका, इल्मुन कोई इलम या इलम, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यालमु जानता है, व अंतुम और तुम, ला नहीं, तालमून तुम जानते। आइन लाम और मीम इसका भी रूट वर्ड है, और ये वाला भी बहुत दफ़ा आया है इसमें, इसी आयात में जो गुजर चुकी हैं इसी रुकू में। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम, ये तुम तो वो लोग हो, तुमने इन बातों में भी झगड़ा किया जिनमें तुम्हारे पास कोई इल्म था। अब क्यों झगड़ते हो इन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में तुम्हारे पास इल्म भी नहीं। चलो जिन चीज़ों के बारे में तुम्हारे पास इल्म था उनमें तुमने झगड़ा किया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम उन चीज़ों के बारे में भी झगड़ा करने लगो जिनके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म और कोई दलील नहीं। और वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी बात दुरुस्त नहीं है। अब है आयत नंबर 67, माँ नहीं, काना थे, इब्राहीमु इब्राहीम, यहूदियन यहूदी, वला और ना, नसरानियन नसरानी या ईसाई, वलाकिन लेकिन, काना थे, हनीफन यकसू, हा नून और फा इसका रूट वर्ड है। ये होता है गुमराही से हदायत की तरफ आना या इस्तकामत की तरफ माइल होने को भी कहते हैं। मुस्लिमन मुसलमान, इसका रूट वर्ड है सीन लाम और मीम। वमा और नहीं, काना वो थे, मिन से, अल मुशरिकीन मुशरिकों में से, और इसका जो रूट वर्ड है वो है शीन काफ और रा, और ये मुशरिक की जमा है। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, माँ काना इब्राहीमु यहूदियम वला नसरानियन, और इस आयत में इशारा है कि यहूद नसारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने अपने गिरोह में शुमार करते हैं, हालांकि ये मुशरिक हैं क्योंकि उन्होंने अपने उलमा को रब और उनके अक़वाल को शरीयत बना रखा है, और उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, नबियों और वलियों की कब्रों को मस्जिदें बनाए हुए हैं। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की परस्तश करने वाले, एक अल्लाह की पूजा करने वाले मुसलमान थे, वो मुशरिकीन में से नहीं थे। और हमारी उम्मत का भी कुछ ऐसा ही हाल है, हर फ़िरके वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अपने गिरोह में शामिल करते हैं, हालांकि सब गिरोह बाद में बने हैं, और उन्होंने अपने इमामों को, अपने सरबराहों के अक़वाल को शरीयत करार देकर इनको अल्लाह का दर्जा या नबी के दर्जे के बराबर कर दिया है, जबकि रसूल अकरम सिर्फ़ और सिर्फ माँ अनज़लल्लाहु अल्लाह के नाज़िल करदा दीन पर चलने वाले मुसलमान थे और हरगिज़ भी मुशरिक ना थे। अब है आयत नंबर 68, इन्ना यकीनन, औला सबसे ज़्यादा करीब, नज़दीक तरीन, और ये इसमें तफदील भी है, और वली किसको कहते हैं, करीबी दोस्त को कहते हैं। वाओ लाम और या इसका रूट वर्ड है,
अन्नासी लोगों में से, बि इब्राहीमा साथ, बामिन साथ, इब्राहीमा साथ इब्राहीम के, लल्लज़ीना अलबत्ता वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो लोग, लल्लज़ीना अलबत्ता लाम यहाँ पे ताकीदी है, अलबत्ता वो लोग हैं, इत्तबाऊहु जिन्होंने पैरवी की, इत्तबाऊ पैरवी करना हु उनकी, वहाजा और ये वाह और हाजा ये इसमें इशारा करीब है, और जब जालिका आता है तो वो बुलंदी और मुकाम के लिए आता है, और जब हाजा आता है तो ये कुरब के लिए आता है। यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। अन नबीयु नबी, वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लाहु और अल्लाह ताला, वलीयु दोस्त है, अलमुमिनीन मोमिनों का, मोमिन की जमा है मोमिनून। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्ना औलन नासी बि इब्राहीमा, लोगों में से करीब तरीन इब्राहीम के, यानी इब्राहीम के करीबी साथियों में वो लोग हैं, लल्लाज़ीना तबाऊहु वो हैं जो उसकी पैरवी करें, यानी हर एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानता है और अपना दोस्त कहता है। तो बात यह है कि इब्राहीम का दोस्त तो वो है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा। जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है इसकी बात भी मानता है। अगर तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को भी इख्तियार करना चाहिए, और उनका तरीका तौहीद का तरीका था, और ये नबी इब्राहीम के ज्यादा करीब हैं। लल्लज़ीना तबाऊहु ईमान लाने वाले ज्यादा करीब हैं। वल्लाहु वलियुल मुमिनीन और अल्लाह दोस्त है सारे मोमिनों का, चाहे वो किसी भी दौर में हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है 2995, कि हर नबी के नबियों में से कुछ दोस्त होते हैं, और मेरे दोस्त इनमें से मेरे बाप और मेरे रब के दोस्त खलीलुल्लाह जिनका लक़ब था इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और हम देखते हैं कि दरूद शरीफ में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम पैगम्बरों में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। हम जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद भेजते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम की दुआ का नतीजा है। और हदीस इसमें जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि मेरे दोस्त मेरे वली इनमें से कौन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मेरे रब के भी खलील हैं। अब है आयत नंबर 69, वद्दत ख्वाहिश रखता है, और इसका रूट वर्ड है वुद, वाओ दाल दाल, ख्वाहिश रखता है, ताइफतुन एक ग्रोह, में वाओ और फा इसका रूट वर्ड है एक ग्रोह के लिए, और ताइफ कहते हैं घूमने वाले को। तवाफ भी इसी से निकला है, और ताइफतुन के अंदर जितने भी लोग हैं वो जहाँ मर्जी होते हैं घूम फिर कर फिर इसी ग्रोह में आ जाते हैं। जैसे अब हमने अपना ये ग्रोह बनाया ना, सब जो भी काम करते हैं फिर आखिर में सब काम करने के बाद इस ग्रोह में आ जाते हैं कि अपना सब लेसन सुनाएं और सबक पढ़ें। मिन से अहलिल किताबी, अहले किताब में से, लो काश, युजिल्लूनकुम वो गुमराह कर दें तुम्हें, युजिल्लूना का मतलब होता है गुमराह करना, दौल लाम लाम इसका रूट वर्ड है, कुम तुम्हें, वमा हालांकि नहीं, युदिल्लूना वो गुमराह कर रहे, ये ज्यादा लोगों के लिए आ रहा है, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपनी जानों को, वमा और नहीं, यशउरून वो शऊर रखते, शीन आइन और रा इसका रूट वर्ड है, और शार कहते हैं बाल को, और यानी जितना बाल बारीक होता है ना उतनी बारीक बात की समझ आना उसको शऊर कहते हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वद्दत ताइफतुन मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से एक ग्रोह ये चाहता है कि इनके अखबार का जो ग्रोह था, इनके बड़ों का ग्रोह, लो युदिल्लूनकुम कि वो तुम्हें भटका दें, काश वो तुमको भटका दें, काश तुम्हारा रास्ता गुम कर दें, तुम्हें दीन इस्लाम से हटा दें। वमा युदिल्लूना लेकिन वो नहीं भटका सकते मगर अपने आप को ही, और वो शऊर नहीं रखते। वो ऐसा क्यों करना चाहते थे?
اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے نفسوں میں حسد اور جلن تھی، اور یہ کہ یہ ہم سے آگے کیوں نکل گئے ہیں۔ سورۃ نساء میں اس کی ایک اور وجہ بتائی گئی ہے، ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو جیسے وہ کفر کر چکے ہیں، وہ خود تو نہیں مانے اور یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی مانو۔ یعنی 89 آیت میں آتا ہے کہ تو تم سب برابر ہو جاؤ، یعنی ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ ایمان لا کر تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس پلٹائیں تاکہ برابر ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، جب یہود ان کو اسلام سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف راغب کرنا چاہ رہے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 70، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بیایات اللہ، بھی آیات کا، اللہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور پہلے بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی۔ شرعی وہ ہیں جو کہ شریعت کے مطابق ہیں، جو قرآن ہے، حدیث ہے، اور کونی آیات وہ ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، کون و مقام ہیں، جو بھی ہمارے سورج، چاند، ستارے، درخت، اور دونوں کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ انکار نہیں کرنا ہوتا کہ درخت نہیں ہے یا آسمان نہیں ہے، بلکہ یہ انکار کرنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم، تشہدون تم گواہی دیتے ہو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے شین، ہا اور دال۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا اہل الکتابی لما تکفرون بیایات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، تم جانتے ہو، تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے تم لا علم نہیں ہو، اور کیونکہ تمہاری کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں پیشون گوئیاں موجود ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کوسچنز کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، ان کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور سوال کیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ شاید ان کو عقل آ جائے، شاید وہ یہ بات مان جائیں اور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بشارتوں پہ اور ان کی ان تمام نشانیوں پہ پورے اترتے ہیں جن کا آلریڈی ان کو پتہ ہی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر رہے تھے، اور حالانکہ وہ خود اس بات کے گواہ تھے، اور یہ تمام آیات کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنے کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر مشتمل آیات کے ساتھ ساتھ عقائد و احکام وغیرہ پر مشتمل دوسری آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی وہ لوگ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہی نہیں بلکہ دوسری آیات کو بھی اللہ کا کلام سمجھنے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے آیت نمبر 71، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تلبسونا تم گڑمڑ کرتے ہو، ملا دیتے ہو، مکس اپ کرتے ہو، با لام اور سین اس کا روٹ ورڈ ہے، الحق کا، حق کو، بالباطلی، بے من ساتھ، الباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ اور تم چھپاتے ہو، کاف تا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الحق کا، حق کو، وَأَنْتُمْ اور حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، تم علم رکھتے ہو۔ اب اس میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لما تلبسون الحق بالباطلی، کہ تم کیوں حق اور باطل کو مکس اپ کر دیتے ہو، خلط ملط کر دیتے ہو، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو اور اس کو ڈھانپ دیتے ہو، جیسے کہ اہل کتاب ان آیات کو چھپا دیتے تھے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان تھا۔ تو تلبیس حق و باطل کیا ہوتی ہے؟ تعویلات کے ذریعے، انٹرپریٹیشن کے ذریعے اس کو اس طرح گول مول کر دینا کہ پتہ نہ چلے کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، وقت تک تمون الحق کا، کہ واضح بات کو پیچھے کر دینا، جیسے کہ احادیث کو کوٹ ہی نہ کرنا، اور پھر ابھی بھی دیکھیں لوگ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ماننا ہوتی کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، یہ پہلے دور کی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، اب یہ اس کا یہاں پہ حکم نہیں ہو سکتا، اب ہماری دنیا کے مطابق یہ میچ نہیں کرتی، مطلب اسلام اور جتنی بھی احادیث ہیں ایک سٹینڈرڈ، ایک وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ دین کو مطلب ہمارے دنیا کو چلنا ہے، نہ کہ وہ دنیا کے مطابق مولڈ ہوں گی اور چینج ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور آخرت تک اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اس کے مطابق اس نے یہ دین اور یہ قرآن نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا، اور اس نے مکمل ایک ضابطہ حیات ہمارے لیے بنا کر بھیجا ہے اس دین کو، اس لیے کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے، جس طرح سے لوگ اس کو تعویل کر کے اس کے مطلب کو چینج کر دیتے ہیں، اور یہ بات ہمارے ہاں آج کل بہت ہی کامن ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.